Hello students, welcome back to my channel. I am Rinkesh sir and today we are going to start with the fourth chapter, that is moving charges and magnetism. Okay, so let's start. Okay, so let's start with the introduction. Now see, the magnetic effect of current was first discovered by H.C. Oersted. Okay, so H.C. Oersted was the first who discovered the magnetic effect of electric current. See, what does he observe? Right? He took a battery and a switch. एक बैटरी ली, एक स्विच और नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी, साउथ नॉर्थ. Now see what happened when the switch is on. Okay, the current flows. Now, what he observed that there is deflection. There is deflection in this magnetic needle. ठीक है. ने क्या देखा, जैसे ही करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ गई. ये नीडल वेस्ट की तरफ टर्न ले लिया. ओके. नाउ दिस स्विच द पोलारिटी. सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, बैटरी की पोलारिटी चेंज कर दी. ओके. magnetic needle. Now, when it switched on, again the current passes. Clear? पर अब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन थी दैट वाज इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में आई. मतलब एक डायरेक्शन में करंट जाता है तो एक साइड पे डिफ्लेक्शन, दूसरे डायरेक्शन में करंट जाता है तो दूसरे साइड में डिफ्लेक्शन आई. ओके. इसमें इस साइड से करंट जाता था, दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन. ये फर्स्ट फिगर में करंट वाज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके. नाउ सी व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, जब व्हेन ही स्विच इट ऑन, करंट इज फ्लोइंग. और जैसे ही करंट फ्लो करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन बताती है. उसका मतलब कि करंट फ्लो होने से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. Right? So what he observed that when the current in the circuit in anti-clockwise, the magnetic needle was found to be deflected towards west. And when the needle is deflected towards east, that is during the current direction is reverse. मतलब जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो गई. राइट. तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि जब भी करंट फ्लो करता है, और व्हाट इज करंट, motion of charge, right? Means moving charges or electric current produces magnetic field. Okay. Moving charges or electric current, okay, produces magnetic field. Clear? So this was the observation of H.C. Oersted. Okay, I am repeating what he did. He took a battery, okay, and just placed a magnetic compass. When the switch was on, current is flowing in this wire and magnetic needle showed deflection towards west. When the polarity of battery was changed, the current flowed in opposite direction. The deflection in magnetic needle was in opposite direction. So he concluded that moving charges or electric current produces magnetic field. Okay. Now see, here there are three figures. Figure A shows that when current passes through long straight wire, emerges out of the plane of paper the direction of magnetic needle around it. मतलब जो ये पहली फिगर है उसमें डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब आप कंसिडर कर सकोगे कि जो वायर है वो इस तरह का वायर है और करंट बाहर की साइड आ रहा है. देन दिस इज द डायरेक्शन. ये जो डायरेक्शन दिया है, दिस इज द डायरेक्शन.
of magnetic needle. Figure B, when the current passes through long straight wire moves into the plane of paper. मतलब क्रॉस मतलब डायरेक्शन अंदर की साइड है. दिस इज इनटू द वायर मीन्स द वायर है और करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है. देन दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल. And figure C shows the arrangement of iron filling around the current carrying wire. मतलब यहाँ पे एक वायर ले लिया. If I take a cardboard, एक कार्डबोर्ड ले लिया, राइट, लाइक दिस वे. कार्डबोर्ड ले लिया, यहाँ पे एक वायर है, करंट बाहर आ रहा है और यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख दूंगा. Then this is the top view. Iron fillings will arrange in this way. Okay, so these are the three figures. What does it show? It shows that when there is moving charges or electric current, then a magnetic field is arise in its surrounding. Clear? Now let's move to the next point, that is magnetic forces. मैग्नेटिक फोर्स, सोर्सेस एंड फील्ड. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कब होगी? सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज. ओके, Q चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? Q. अगर यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया Q, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी. यहाँ पे कोई और चार्ज Q लगाऊंगा तो उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फोर्स विल बी इक्वल टू ई क्यू. राइट? ओके, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या हुआ? चार्ज क्यू. तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उसका सोर्स है मूविंग चार्जेस. ओके, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मूविंग चार्जेस. ओके, हमने अभी देखा ऑस्टर ने क्या ढूंढा था? when there is moving charges or when the electric current is there, then it produce magnetic field. So remember this point, important for MCQ. Source of electric field, that is the charge. Okay, and source of magnetic field, that is moving charge. Okay, अब ऊपर का केस ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ देयर आर मोर देन वन चार्जेस, Q1, Q2, Q3, तो कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वेक्टर सम. Right? So same way, the magnetic field of several sources, एक से ज्यादा moving charges हो गए, then the magnetic field will be the vector sum, means vector addition of magnetic field. Clear? The symbol for magnetic field we are using is B. Okay, this is the symbol of magnetic field. Clear? So this was about sources and field. Remember, source of electric field, electric charge, source of magnetic field, moving charges or electric current. Now let's move to the next topic, that is magnetic field and Lorentz force. Okay, now Lorentz force. Okay, now if I take a charge, now see, consider a charge Q placed in electric field and magnetic field. Okay, we are considering this charge placed in electric field and magnetic field, and this charge Q is moving with velocity v. Okay, so I will not say placed, I will say charge Q moving with velocity v. Clear? Electric field, let's say E, magnetic field, let's say D. Okay, now see, क्या किया हमने? हमने एक चार्ज Q लिया मूविंग विथ वेलोसिटी v, और दोनों फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड
बी। ओके, तो दो फोर्सेस हो गए। पहला फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F equal to EQ, right? So F E, that is electric force, that is equal to electric field vector E into Q. Okay. Now say the charge is moving with velocity V. That means it will also experience a magnetic force. बराबर है? तो मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला है F B. I am writing B for magnetic force, that is equal to Q into V क्रॉस B, राइट? देखो दोनों फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला ई क्यू, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ओके, okay, so the total force F, that is equal to F E plus F B. This is called Lorentz force. Okay, means Lorentz force क्या है? Sum of the electric force and the magnetic force. क्लियर? तो इसके फॉर्मूला आ जाएंगे F इक्वल टू ई क्यू प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। वी कैन ऑल्सो टेक क्यू कॉमन, ये हो गया क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। ओके, दिस इज लॉरेंट्स फोर्स। ओके, okay, now let's see in detail about the magnetic force. See, magnetic force F was equal to Q into V क्रॉस B. तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? V क्रॉस B। हम राइट हैंड थंब रूल या राइट स्क्रू रूल अप्लाई करेंगे। मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, magnetic field की डायरेक्शन ये रही, तो V क्रॉस B, when I will rotate my finger towards this one, my thumbs will be in upside. Okay, clear? Okay, now magnitude of this magnetic force, that will be equal to Q. V cross B means V B sine theta. Now this is theta. Clear? If I take velocity in positive x-axis and magnetic field in negative z-axis, this is the axis, x, y, z. This is negative. So this angle will be 90 degree. Then sine 90 will be equal to 1. So remember, when the direction between, or when velocity vector and magnetic field, they are perpendicular, then the magnetic force is maximum. Okay. Now unit of magnetic field. See, I can write it down. See, I can write it down. F is equal to QVB. So B will be equal to F upon QV. So unit of force is Newton, unit of charge is Coulomb, and unit of velocity meter per second. So the unit of magnetic field, sorry, magnetic field will be Newton second per Coulomb meter, or else I can use it as Tesla. Okay, I can use it as Tesla. After the name of the scientist, Tesla. Okay, so symbolically I will use T. That is for Tesla, that is a unit of magnetic field. Okay, but see, we can also use the smaller unit, that is Gauss. Gauss is the smaller unit. 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. Clear? So sometime instead of Tesla, the value of magnetic field is given in Gauss. You must understand 1 Gauss is equal to 10 raised to minus 4 Tesla. Okay? Now see some important points.
The magnetic field depends on which thing? Q, that is the charge. V, that is the velocity of the moving charge. B, magnetic field, and theta, the angle between V and V. मतलब मैग्नेटिक फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसके। ओके क्लियर? द मैग्नेटिक फोर्स इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, सो देयरफॉर if the velocity and magnetic field are parallel or anti-parallel, मतलब velocity इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मतलब एंगल हो गया जीरो, मतलब क्यू वी बी साइन जीरो, इसकी वैल्यू आ गई जीरो। और एल्स वेलोसिटी वेक्टर वही डायरेक्शन लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल आ गया थीटा इक्वल टू 180। तो एफ हो गया मैग्नेटिक फोर्स हो गया क्यू वी बी साइन 180, तो साइन 180 की वैल्यू भी जीरो है, राइट? तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दिस बोथ आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल, मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, मतलब तब कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके एंड इफ द चार्ज इज नॉट मूविंग, मतलब स्टेशनरी चार्ज है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी जीरो, तो क्यूवी में भी जीरो हो जाएगा। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट magnetic field. This is about Lorentz force. So just go through this topic. Now let's move to the next topic. Okay, the next topic is magnetic force on a current carrying conductor placed in magnetic field. मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई कंडक्टर रखते हैं, उसमें करंट पास होता है। ओके, तो चलो हम ले लेते हैं ये कंडक्टर। ओके ओके, और लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द प्लेन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की है। ओके, इसको मैं बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, तो मतलब क्या होगा? करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर L. ओके, लेट द नंबर डेंसिटी बी N, नंबर डेंसिटी बी N। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? N। तो ये जो कंडक्टर की हमने लेंथ ली है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ओके, फॉर यूनिट वॉल्यूम N। इसका वॉल्यूम क्या है? अगर लेट द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए, मतलब जो कंडक्टर लिया उसका एरिया है ए, लेंथ एल, और फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी एन। क्लियर? तो ये कंडक्टर का वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इंटू लेंथ। अब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, तो ए एल वॉल्यूम में कितने हो गए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी इक्वल टू एन ए एल। क्लियर? तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए इस कंडक्टर में, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? टोटल चार्ज Q, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो NaL इलेक्ट्रॉन का चार्ज NaLe। ओके, अब क्या होगा? करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होगी अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और आगे से when the charges will be moving, Q charge is moving with velocity v in this direction. Okay, I'm writing this is the direction of v। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? अंदर की है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, लेट मी जस्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v। मैग्नेटिक फील्ड x, मतलब अंदर की डायरेक्शन, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। ओके, तो अभी मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला क्या थी? मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला थी F इक्वल टू Q
इंटू वी क्रॉस बी। ओके, ये जो वेलोसिटी है आई विल टेक इट एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे मैंने बैटरी कनेक्ट की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हुई, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी की डायरेक्शन। सो एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। चार्ज कितना है एन ए एल ई, तो इसका मतलब हो गया एन ए एल ई वी डी क्रॉस बी। क्लियर? अभी एन ए ई वी डी, अगर मैं करंट डेंसिटी का रिलेशन ले लूं, करंट डेंसिटी का रिलेशन क्या था, J इक्वल टू एन ई वी डी। जे का हो गया आई बाई ए, मतलब एन ई वी डी करंट आई हो गया एन ई वी डी ए। तो यहाँ पे देखो एन ई वी डी ए, तो ये मैं रिप्लेस कर लूंगा आई और एल वेक्टर में इंटू बी। So the magnetic force on a current carrying conductor placed in magnetic field B will be F will be equal to I L क्रॉस B। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला। क्लियर? आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या किया, आई यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स मीन्स Q इंटू वी क्रॉस पी। अब कितना चार्ज है, V हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, Q नंबर डेंसिटी n, क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो वॉल्यूम हो गया AL। यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n, तो AL वॉल्यूम के लिए NaL। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, तो NaL इलेक्ट्रॉन का चार्ज NaLe। तो ये Q पे रिप्लेस कर दिया, और I इक्वल टू NeVDA, रिप्लेसिंग दैट I गॉट F इक्वल टू IL क्रॉस B। Clear? So this is the formula of a magnetic force of current carrying conductor placed in magnetic field. Okay? अगर ये एंगल 90 हुआ तो आई एल बी होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा तो आई एल बी साइन थीटा। ओके, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक। Okay, students. So that's it for today. Thank you.